One of the most important factor that we consider before joining an organization is salary. It is equally applicable for both private as well as government organization. And one such very reputed government organization is Securities and Exchange Board of India, that is SEBI. So if you want to become a part of SEBI as a SEBI grade A legal officer, or if you're aspiring to become a SEBI grade A legal officer, then how much amount will you get in your hand as a salary? What are the deductions that will be made from your salary? Will you get any additional advantages, additional benefits or not apart from your salary? This is what we are going to discuss in this session. But the question is why we are discussing about the salary structure of SEBI grade A legal officer. So guys, you know very well that recently SEBI has come out with the notification of 25 vacancies for the post of SEBI grade A legal officer, and the phase 1 of this examination will be conducted on 5th August and phase 2 will be on 9th September 2023. So if you want to become a SEBI grade A legal officer, or if you are preparing for this examination, so this video becomes very necessary for you to understand how much amount will you get once you become a SEBI grade A legal officer. So let's discuss guys. बट स्टार्ट करने से पहले वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू वांट टू हैव दिस सैलरी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, अगर आपको सैलरी चाहिए, सो फॉर दैट यू नीड टू बिकम अ सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर, यू नीड टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, राइट? एंड फॉर क्लियरिंग एनी एग्जामिनेशन, रेफरिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर मस्ट. ठीक है, वो आपको करने ही करने हैं किसी भी कॉस्ट में गाइज, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेफर करने से यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स. बट द थिंग इज कहां आपको मिल सकते हैं गाइज? सो दिस इज फ्रीली अवेलेबल एट EduTap. You just need to click on the link given in the description box below and you can download it. और सिर्फ आपको डाउनलोड नहीं करने हैं, you have to refer it on a regular basis. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. द सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ अ सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर. सो वेरी फर्स्ट थिंग, कुछ बेसिक जो कंपोनेंट है आपके सीटीसी का, दैट इज बेसिक amount plus DNS allowance plus special allowance and family allowance. This amount is 1,49,500 monthly, right? But if you avail housing facility provided by the SEBI, then in that case the amount is 1,11,000. ठीक है, जो housing facility provide की जा रही है that is 38,500 की है. So if you are availing that housing facility, then in that case amount will be 1,11,000. And if you are not availing the housing facility, then in that case the amount will be 1,49,500. बट गाइज दिस इज द बेसिक अमाउंट. इसके बाद बहुत सारे अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं टू द सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर. एंड व्हाट आर दोज अलाउंसेस? हियर यू कैन सी पेट्रोल अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है, न्यूज़पेपर अलाउंस, देन सर्वेंट अलाउंस, देन मोबाइल ऐप अलाउंस, देन लैपटॉप अलाउंस, देन फर्नीचर अलाउंस, देन मेडिकल अलाउंस, देन ब्रीफ केस अलाउंस, राइट? सो ये सारे के सारे अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं टू द सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर. नाउ गाइस, अब ये जो अलाउंस है ये किस रेट पर पे किए जाते हैं? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, राइट? सो हियर यू कैन सी वी हैव डिस्कस्ड कि यहाँ पे बेसिक प्लस डीएनएस अलाउंस प्लस स्पेशल अलाउंस एंड फैमिली अलाउंस, दैट बिकम्स 1,49,500 ऑन अ मंथली टर्म, राइट? मंथली पीरियड में देखा जाए, मंथ के टर्म्स में देखा जाए, सो दिस इज 1,49,500 एंड इन हैंड है 1,11,000. किस केस में? इन केस यू आर अवेलिंग द हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द सेबी. अगर आप हाउसिंग फैसिलिटी अवेल नहीं कर रहे हैं, देन इन दैट केस द अमाउंट विल बी 1,49,500. And apart from this basic amount, you will get a lot of allowances, like for example petrol allowance, right? So petrol allowance will be given 21,700 रुपीज. ठीक है, ये पेट्रोल अलाउंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा. इस इन हैंड अमाउंट भी सेम ही है, यहाँ पे ये प्रोवाइड किया जाता है 200 लीटर्स पर मंथ के हिसाब से, एंड द अमाउंट इज अराउंड 108 पर लीटर, राइट? सो दैट बिकम्स 21,700 जो आपकी सीटीसी का पार्ट होता है. देन न्यूज़पेपर अलाउंस इफ वी डिस्कस, सो न्यूज़पेपर अलाउंस इज आल्सो प्रोवाइडेड टू द सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर, ताकि वो रेगुलर बेसिस पे खुद को अपडेट रख सके, राइट? बट दिस अमाउंट इज प्रोवाइडेड ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, दैट इज 2,400 rupees is provided on a quarterly basis as the newspaper allowance. अगर हम इसको मंथ के टर्म्स में देखें, so this is 800 per month, right? Now servant allowance is also provided. ये भी क्वार्टरली बेसिस पर ही प्रोवाइड किया जाता है. रुपीज 15,000 is provided on a quarterly basis, but if we consider it, if we see it on a monthly term, so that is 5,000 per month. In hand amount भी सेम ही होता है guys, 5,000 per month. राइट, देन टेलीफोन अलाउंस इज आल्सो प्रोवाइडेड. तो यहाँ पे 81,100 बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है. अगेन दिस इज ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, राइट? इसको अगर हम ब्रेक करें मंथ के टर्म्स में, सो दैट इज 2,700 पर मंथ. देन आफ्टर दैट मेडिकल अलाउंस, दैट इज 4,000 पर मंथ मेडिकल अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है, बट दिस इज प्रोवाइडेड ऑन एन ईयरली बेसिस. ठीक है, ईयरली बेसिस पर प्रोवाइड किया जाता है, विच इज 52,000 पर ईयर. और अगर आप इसको ब्रेक करेंगे मंथ के टर्म्स में, सो दैट इज अराउंड 4,000 पर मंथ.
देन लैपटॉप अलाउंस इज ऑल्सो गिवन टू द सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर, तो वो जो पे किया जाता है 40,000 पे किया जाता है वंस इन 4 ईयर्स, ठीक है। तो 4 ईयर्स की लाइफ टाइम यहाँ पे कंसीडर की जा रही है लैपटॉप की, और वंस इन अ 4 ईयर यू विल बी गिवन द अमाउंट ऑफ 40,000 एज अ लैपटॉप अलाउंस, जो कि अगर हम ब्रेक करें इसको मंथ के टर्म्स में देखें, सो दैट इज अराउंड 1,000 पर मंथ, ठीक है। 1,000 पर मंथ के हिसाब से लैपटॉप अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है। देन गाइस फर्नीचर अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो हमारे ऑफिसर्स है वो अच्छे फर्नीचर रख सके, ठीक है। उनको एक ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड है और वहां पे उनकी जो वर्क लाइफ बैलेंस है काफी अच्छी, राइट। तो उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप रह कैसे रहे, ठीक है। तो उसके लिए फर्नीचर अलाउंस इज प्रोवाइडेड, राइट, एंड दैट फर्नीचर अलाउंस इज अराउंड 4,000 पर मंथ। कैसे अमाउंट ये आ रहा है, तो फर्नीचर अलाउंस जो रहेगा गाइस वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, दैट इज 1,80,000 आपको प्रोवाइड किया जाएगा एवरी 5 ईयर्स में, ठीक है। एवरी 5 ईयर्स में यू विल बी गिवन 1,80,000, और जो रिमेनिंग 4 ईयर्स रहेंगे, ठीक है, क्योंकि हर 5 साल बाद आपको मिलेगा 1,80,000 रुपए, जो रिमेनिंग 4 ईयर्स रहेंगे उसमें आपको मिलेगा 18,000 पर ईयर, 18,000 पर ईयर फॉर इट्स मेंटेनेंस, ठीक है। इसके मेंटेनेंस के लिए आपको 18,000 पर मंथ दिया जाएगा 4 साल तक। 5वें साल अगेन यू विल बी गिवन 1,80,000, ठीक है। तो अगर हम इसको 4 साल के इस अमाउंट को कंसीडर करें सो दैट इज 72,000, राइट। और अगर हम बात करें 5th ईयर जो अमाउंट मिलेगा 1,80,000, सो ये हो जाता है लगभग आपका 2,50,000, ठीक है। 2,50,000 का ये जो अमाउंट है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा एवरी 5 ईयर्स में एज अ फर्नीचर अलाउंस। तो अगर हम इस अमाउंट को ब्रेक करेंगे इस मंथ के टर्म्स में देखेंगे, सो दैट इज अराउंड 4,000 पर मंथ, राइट। देन ब्रीफ केस अलाउंस इज ऑल्सो गिवन गाइस 350, जो कि कम है वैसे तो, बट हाँ प्रोवाइड किया जाता है टू द सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर, बट दिस इज प्रोवाइडेड ऑन एन ईयरली बेसिस, ठीक है। ईयरली बेसिस पर इसको प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज 4,000 रुपीज पर ईयर, और यहाँ पे अगर हम ब्रेक करें मंथ के टर्म्स में, सो दैट इज 350 पर मंथ। Then Sodexo is also provided, which is 9,600 per year, and if you break it on a monthly basis, then in that case that will be rupees 800 per month. बुक्स भी दिया जाता है गाइस ताकि बुक्स रेफर कर सके, खुद को अपडेट कर सके, ठीक है, अपने जो स्किल्स हैं उनको इंप्रूव कर सके। सो फॉर दैट बुक्स के रिगार्डिंग भी यहाँ पे अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। सो दैट इज 7,000 पर ईयर है, जिसको अगर हम ब्रेक करेंगे मंथ के टर्म्स में, सो दैट इज अराउंड रुपीज 600, ठीक है। Then spectacle allowance is also provided guys, which is again 7,000 per year provide किया जाता है, and again if we consider if we break it on a monthly term, then in that case this is around 600 per month, जो कि in hand amount भी same ही है, right? So this is all the part of CTC, ये CTC का पूरा पार्ट होता है guys। इतने सारे allowances यहाँ पे provide किए जाते हैं apart from basic and DNS allowance, these all allowances are paid, which makes a total of rupees 1,91,650. This is in the case when you are not availing the housing facility. If you are availing the housing facility, then in that case amount will be 1,52,550, right? अगर हम इसको ईयरली सीटीसी में देखें, सो दिस अमाउंट इज अराउंड 23 लाख, दैट इज 22,99,800, जो कि द फिगर इज 23 लाख के अराउंड है, ठीक है। सो 23 लाख के अराउंड जो फिगर है गाइस वो बहुत ही अच्छा फिगर है इफ यू वांट टू स्टार्ट योर करियर एज अ सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर। बट द थिंग इज क्या ये सारा अमाउंट आपको हाथ में मिलता है? नो गाइस, अ लॉट ऑफ डिडक्शंस आर मेड। यहाँ पे बहुत सारे डिडक्शंस भी होती हैं आपके सैलरी में। उसके बाद जो अमाउंट बचता है दैट इज योर इफेक्टिव सीटीसी और इफेक्टिव सैलरी और इन हैंड सैलरी जो आपको मिलती है। नाउ the question is what are the deductions that are made from the salary? So here you can see the deductions जो कि आपकी सैलरी से यहाँ पे किए जाते हैं। This we have discussed, ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि 1,91,650 है, and if you are availing the housing facility then this is 1,52,550, right? Now the question is कि कौन कौन से डिडक्शंस होते हैं आपकी सैलरी में से। So here you can see employee एनपीएस कंट्रीब्यूशन किया जाता है यहाँ पे मंथली बेसिस पर, दैट इज अराउंड 10,000 रुपीज, ठीक है, अराउंड 10,000 रुपीज के आसपास ये अमाउंट रहता है। देन एम्प्लॉयर एनपीएस कंट्रीब्यूशन अगेन 11,000 के आसपास रहता है पर मंथ के हिसाब से। देन प्रोफेशनल टैक्स इज ऑल्सो डिडक्टेड, दैट इज अराउंड 200 पर मंथ। देन इनकम टैक्स डिडक्ट करते हैं विच इज अराउंड 16,000 के आसपास रहता है आपका पर मंथ के बेसिस पर, बेस्ड ऑन द इनकम। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो ऑब्वियसली बात है इनकम टैक्स भी यहाँ पे बढ़ जाएगा, राइट। देन मेडिकल असिस्टेंट फंड इज ऑल्सो डिडक्टेड फ्रॉम द from your salary itself, that is 800 per month, and staff association amount is also deducted from your salary which is around 1,000 rupees, ठीक है। तो ये सारे के सारे डिडक्शंस यहाँ पे किए जाते हैं आपकी सैलरी में से। दिस इज ऑन अ मंथली बेसिस, और अगर कन्वर्ट करें ईयरली बेसिस पर तो ये सारा अमाउंट यहाँ पे ईयरली बेसिस पर आपकी सैलरी में से डिडक्ट किया जाता है, राइट। यहाँ पे जो टोटल है विच इज अराउंड 40,000 के आसपास आपका टोटल यहाँ पे बनता है। सो वट एवर अमाउंट वी हैव सीन, यहाँ पे हमने ये अमाउंट देखा दैट इज 1,91,650, ये आपका इफेक्टिव अमाउंट नहीं है, ग्रॉस सीटीसी है। इफेक्टिव सीटीसी क्या होगा
होगी जब उसमें ये सारे अमाउंट डिडक्ट कर ले जाएंगे, विच इज अराउंड 40,000 रुपीज, राइट। सो यू कैन सी द ग्रॉस सीटीसी इज 1,91,650 और उसमें से अगर आप डिडक्शंस कर लेंगे विच इज अराउंड 39,000 और 40,000, सो इफेक्टिव सीटीसी जो आपके इन हैंड सीटीसी रहेगी वो कितनी रहेगी 1,52,650, लगभग 1,50,000 रुपए, ठीक है, लगभग 1,50,000। और अगर हम इसको देखें बेसिकली यहाँ पे अगर ईयरली बेसिस पर देखें सो दैट इज अराउंड 18,30,000 के आसपास, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बेसिकली सीटीसी गाइस, अगर आप इफ यू वांट टू बिकम अ सेबी ग्रेडेड लीगल ऑफिसर और अपना करियर यहाँ पे बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके बाद आपको ग्रोथ होगी, जब आपका प्रमोशन होगा उसके बाद बहुत सारी ग्रोथ मिलेगी आपको, राइट, सारे अलाउंसेस बढ़ेंगे, आपकी बेसिक बढ़ेगी, आपका डीए बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। सो दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, ठीक है, ये बस स्टार्ट करने के लिए जब आप एज अ ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर जब आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है, एज अ ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर, तो आप उसके में आपको ये सैलरी मिलती है अराउंड 18,30,000 के आसपास, राइट। बट द थिंग इज क्या यही सारी चीजें हैं, यही सैलरी हो गई, ये अलाउंसेस हो गए, डिडक्शंस हो गए, इतने ही अमाउंट मिलते हैं? नो गाइस, इफ यू आर अ पार्ट ऑफ सेबी, if you are becoming a SEBI grade A legal officer, so apart from this amount you will get a lot of additional benefits, बहुत सारे additional benefits will be given to you because you are a part of SEBI. And what are those additional benefits guys? Here you can see canteen facilities will be provided to the SEBI grade A legal officer. So if you are a SEBI grade A legal officer, then in that case canteen facility will be provided to you, and that is unlimited lunch in rupees 100 for the whole month, ठीक है। यहाँ पे quality food will be provided to you, and यहाँ पे बहुत ही discounted rate में आपको provide किया जाता है canteen facility, that is unlimited lunch in rupees 100 for the whole month, पूरे month के लिए सिर्फ 100 रुपीज ही चार्ज किया जाता है, and this is only possible when you are a part of SEBI। अगर आप सेबी के पार्ट है एज अ सेबी ग्रेड लीगल ऑफिसर, तभी आपके लिए कैंटीन फैसिलिटी अवेलेबल है, अदरवाइज अवेलेबल नहीं है, राइट। सो दिस इज काइंड ऑफ एडिशनल बेनिफिट दैट इज प्रोवाइडेड टू द सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर। देन जिम फैसिलिटीज गाइज, यू नो वैल्यू वेल कि हमें यहाँ पे कितना जरूरी है हमें फिट रहने का, राइट, हमें फिट रहना कितना हमारे लिए नेसेसरी है, तो उसके लिए रेगुलर वर्कआउट चाहिए। एंड दोज हु आर जिम फ्रीक, दोज हु आर फिटनेस फ्रीक, दे नो वेरी वेल द कॉस्ट ऑफ जिमनास्टिक्स, राइट, जिम की क्या कॉस्ट होती है दे नो वेरी वेल, बट यहाँ पे कंप्लीटली फ्री जिम प्रोवाइड की जाती है बाय द सेबी टू इट्स ऑफिसर्स, ठीक है। तो इफ यू आर अ सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर देन इन दैट केस फ्री जिम फैसिलिटीज विल बी प्रोवाइडेड टू यू, ठीक है। यहाँ पे जिम की कोई भी कॉस्ट कंसीडर नहीं की जा रही है, कोई भी कॉस्ट आपसे रिकवर नहीं की जाएगी, दिस इज कंप्लीटली फ्रॉम द सेबी साइड, राइट। सो दिस इज फ्री जिम फैसिलिटी, जो कि अगेन एडिशनल बेनिफिट है इफ यू आर अ सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर। देन स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट के लिए भी यहाँ पे गाइस काफी अच्छा प्रोविजन दिया गया, लाइक फॉर एग्जांपल दे कीप ऑर्गेनाइजिंग क्रिकेट बैडमिंटन टूर्नामेंट्स फॉर स्पोर्ट्स लवर्स एंड स्पोर्ट किट्स आर रीइंबर्स्ड, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे जो लोग भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके लिए भी यहाँ पे प्रोविजन रखा गया है, ताकि वो प्रॉपर तरीके से एंजॉय कर सके अपने काम को, और उनको एक सेंस ऑफ एसोसिएशन हो कि किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो जुड़े हुए हैं जो कि उनकी सारी चीजों का ध्यान रख रहा है। तो वहां पर जो भी स्पोर्ट्स के जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं वहां पर किट्स वगैरह रहती है, तो उसके जो किट्स की जो कॉस्ट होती है दैट इज रीइंबर्स्ड, right, and this is again it is only possible when you are a part of SEBI। तो स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट के लिए भी यहाँ पर काफी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है बाय द सेबी। देन गाइस फॉर पार्टी एनिमल्स, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पार्टी एनिमल्स होते हैं, राइट, जिनको पार्टीज करना पसंद होती है, तो उनके लिए भी गाइस यहाँ पर बजट है, दैट इज बजट ऑफ रुपीज 5,000 पर एम्प्लॉय पर 6 मंथ, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए तो दैट इज अमाउंट इज 10,000 पर ईयर के हिसाब से, ठीक है। सो 10,000 पर ईयर फॉर दोज हु लव डूइंग पार्टीज, तो उनके लिए भी यहाँ पे प्रोविजन रखा गया है। सो हियर यू कैन सी गाइस, सारे ही एस्पेक्ट पे से भी यहाँ पे काम कर रहा है। एक तो आपके प्रोफेशनल फ्रंट पर भी, जहां पर सारी सीटीसी है, आपको प्रॉपर एक बहुत अच्छा अमाउंट पे किया जा रहा है इफ यू आर अ पार्ट ऑफ सेबी, राइट। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम द प्रोफेशनल फ्रंट, पर्सनल फ्रंट पर भी बहुत सारी चीजें की जा रही है, लाइक जिम फैसिलिटीज है आपके लिए, स्पोर्ट्स पर्सन है तो उनके लिए प्रोविजन है, इफ यू आर अ पार्टी एनिमल आपके लिए प्रोविजन है, राइट। तो यहाँ पे सारे ही फ्रंट्स को कंसिडर कर रहा है सेबी, ताकि किसी को भी ऐसा फील ना हो कि हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ काम करने के लिए जाते हैं, रादर एक वर्क लाइफ बैलेंस प्रॉपर अच्छी होनी चाहिए, और इससे अच्छा ऑर्गेनाइजेशन आपको वर्क लाइफ बैलेंस के मामले में नहीं मिल सकता, राइट। देन बीएसपी प्रोग्राम होता है गाइस एक यहाँ पे सेबी में, विच इज रिलेटेड टू ब्रेनस्टॉर्मिंग, और इसका भी बजट होता है रुपीज 11,000 पर ईयर के हिसाब से, बट अगेन दिस इज कंप्लीटली बियर बाय द सेबी इटसेल्फ। यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे एम्प्लॉय से सेबी ग्रेडेड लीगल ऑफिसर से रिकवर नहीं किया जाता है, सो दिस इज कंप्लीटली फ्रॉम द सेबी साइड, सो दैट इज अगेन वन ऑफ द एडिशनल बेनिफिट दैट इज प्रोवाइडेड टू द सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर।
चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए यहाँ पे गाइस प्रोविजन है, इफ यू आर अ सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर और अगर आपके चिल्ड्रन हैं तो वहां पर यू विल बी गिवन ₹7,000 पर मंथ एज अ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ठीक है, चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए यहाँ पे एक अमाउंट पे किया जाएगा फॉर टू दोज एम्प्लॉइज, टू दोज लीगल ऑफिसर जिनके बच्चे हैं और जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जो स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उनके लिए ₹7,000 पर मंथ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा बाय द सेबी, राइट। Then guys, you know very well कि after doing hectic work we all need rest, right? So यहाँ पे रेस्ट के रिगार्डिंग भी बहुत अच्छा प्रोविजन है। Here you can see Saturday Sundays are off, ठीक है, तो this is around 104 holidays ईयर में। If you consider तो वहाँ पे सैटरडे और संडे ऑफ होते हैं जो कि अराउंड 100 प्लस 104 हॉलीडेज होते हैं। देन नेशनल हॉलीडेज होते हैं विच इज अराउंड 15, ठीक है, तो 15 नेशनल हॉलीडेज आर ऑल्सो देयर। देन अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस कैजुअल लीव्स भी होती हैं विच इज अराउंड 42। सो यहाँ पे टोटल 160 हॉलीडेज यू विल बी गिवन इफ यू बिकम अ सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर। सो आउट ऑफ 365 डेज यहाँ पे 160 डेज का तो आपको गाइस लीव ही मिल जाती है, हॉलीडेज मिल जाते हैं, इसके अलावा आपको काम करना होता है। तो यहाँ पे यू कैन सी गाइस कि यहाँ पे बहुत सारे, ठीक है, सारे ही फैक्टर्स को यहाँ पे सेबी कंसीडर कर रहा है। सो इफ यू वांट टू बिकम अ सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर, और अगर आप सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर बनते हैं और सेबी का पार्ट बनते हैं गाइस, सो इन दैट केस यू विल बी गिवन ऑल दीज फैसिलिटीज जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, वो सारा अमाउंट, सैलरी, सीटीसी, दैट विल बी गिवन एंड अलोंग विद दैट यू विल बी गिवन सम एडिशनल बेनिफिट्स एज वेल। और उसके साथ गाइस आपकी जो एक रेपुटेशन होती है सोसाइटी में कि यू आर अ पार्ट ऑफ सेबी एज अ वेरी रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन, तो वो रेपुटेशन आपको साथ में मिलती है जो कि एक इंटेंजिबल असेट है जिसकी कोई कॉस्ट हम यहाँ पे मेजर नहीं कर सकते हैं, राइट। सो दीज ऑल आर द थिंग्स गाइस जो कि आप यहाँ पे आपको मिल सकती हैं इफ यू आर अ सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर। सो गाइस यू नो वेरी वेल कि अब यहाँ पे जो एग्जाम है फेज 1 का वो 5 अगस्त को होने वाला है और फेज 2 का 9 सितंबर को होने वाला है। सो इफ यू हैवंट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन yet गाइस, सो यू हैव अ लास्ट अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट द प्रिपरेशन विथ अस। सो वी हैव लॉन्च्ड 2 different courses for those who want to become a SEBI grade A legal officer this year. So that is the SEBI grade A legal live crash course यहाँ पे प्रोवाइड किया गया for both phase 1 and phase 2, ठीक है। for both phase 1 and phase 2 के लिए हमने यहाँ पे live crash course लॉन्च किया है जिसमें 60 plus live classes will be given, ठीक है, 60 plus live classes will be given for both phase 1 and phase 2, paper 1 and paper 2, दोनों ही phases में 60 plus live classes will be given and every important and relevant concept will be taught in that live classes, ठीक है। सारे के सारे जो सेबी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी पेपर, चाहे वो किसी भी फेज का पार्ट है, दैट विल बी टॉट टू यू इन दीज लाइव क्लासेस, ठीक है। इसके अलावा यू विल गेट द चैप्टर वाइज क्विज ऑल्सो, ठीक है, आपको चैप्टर वाइज क्विज भी मिलेंगे, आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द प्रैक्टिस बिफोर योर एक्चुअल एग्जामिनेशन। चैप्टर वाइज क्विज से व्हाट डू आई मीन गाइस, सपोज आपके सिलेबस में पेपर 2 का जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, सो कॉन्स्टिट्यूशन में यू कैन सी प्रीएम्बल, पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरीके से चीजें मेंशन है, तो इसी के अकॉर्डिंग यू विल गेट द क्विज इन अवर कोर्स, दैट इज प्रीएम्बल के क्विज आपको अलग मिलेंगे, पार्ट 1 के क्विज यू विल गेट सेपरेटली, पार्ट 3 के अलग, राइट। तो इसी तरीके से सिलेबस में जिस तरीके से बाइफर्केशन किया गया है सिलेबस का, टॉपिक्स का, यू विल गेट द क्विज अकॉर्डिंगली। सो दैट इज सेक्शनल, दैट इज सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज क्विज, ठीक है, चैप्टर वाइज क्विज मिलेगा, उसके साथ आपको मिलेगा 60 प्लस लाइव क्लासेस, ठीक है। यहाँ पे क्लासेस का एक यूनिक फीचर है हमारा लाइव क्लासेस का, जिसके थ्रू हम सारा का सारा इंपॉर्टेंट जो है आपका सीबी पॉइंट ऑफ व्यू से दैट वी विल बी कवरिंग। So this is the live crash course। और अगर आपको ये कोर्स अवेल करना गाइस, so you can refer the link given in the description box below, वहां पे काफी अच्छा डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है अभी, and you can avail that discounts by referring the code जो कि वहां पे मेंशन होगा, तो आप अभी अवेल कर सकते हैं। एंड अगेन ये बहुत ही लिमिटेड पीरियड ऑफर है, इसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, राइट। सेकंड कोर्स इज गाइस लीगल टेस्ट सीरीज हमने यहाँ पे लॉन्च की है अगेन फॉर बोथ फेज 1 एंड फेज 2। सो यहाँ पे सारे फीचर सेम है बिटवीन द टेस्ट सीरीज एंड यहाँ पे लाइव क्रैश कोर्स, एक्सेप्ट वन कि वहां पे लाइव क्लासेस है, ठीक है, यहाँ पे लाइव क्लासेस नहीं है, यहाँ पे लाइव क्लासेस नहीं है, वहां पर लाइव क्लासेस हैं, ठीक है। क्रैश कोर्स में लाइव क्लासेस है, यहाँ पर लाइव क्लासेस नहीं है, उसके अलावा सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। गाइस क्रैश कोर्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पर जो हमारा स्पेशल फोकस रहने वाला है वो कॉर्पोरेट लॉज रहने वाला है, ठीक है, सिक्योरिटीज लॉज जो कि अभी नया नया ऐड हुआ है, आई मीन इट वाज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस बट उसका वेटेज बढ़ा दिया गया, 40% कर दिया गया है, एंड फर्दर यहाँ पे कुछ रेगुलेशंस एंड रूल्स ऐड कर दिए गए हैं जो लास्ट ईयर तक नहीं थे। तो कॉर्पोरेट लॉज, सिक्योरिटीज लॉज एंड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे हमारा स्पेशल फोकस रहेगा। सिलेबस सारा कवर करेंगे बट इन कंपोनेंट्स पर स्पेशल फोकस रखेंगे क्योंकि ये आप अपने ग्रेजुएशन करिकुलम में नहीं पढ़ते हैं और आपके लिए नया है, तो गाइस इस पे हमारा स्पेशल फोकस रहेगा। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में यू नो वेरी वेल इस साल डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है बाय द सेबी फॉर पेपर 2 इन फेज 2, तो वहां पर भी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में किस तरीके से आपको अप्रोच करना है लाइव क्लासेस में वो भी बताया जाएगा। और यू विल बी गिवन
डिस्क्रिप्टिव इवैल्यूएशन फैसिलिटी ऑल्सो। वहां पे आप जो भी आंसर लिखेंगे तो फुल लेंथ टेस्ट के फॉर्म में 5 फुल लेंथ टेस्ट विल बी गिवन टू यू, और उसमें आपको प्रॉपर इवैल्यूएशन विल बी प्रोवाइडेड। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूनिक फीचर है, सो दैट यू कैन कंसिडर गाइज। तो ये दोनों कोर्सेज हैं। इफ यू वांट टू अवेल दिस कोर्सेज, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, यू कैन रेफर द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो थैंक यू वेरी मच गाइज। आई होप आपको समझ में आएगी कितनी सैलरी यहाँ पे आपको मिलेगी अगर आप यहाँ पे सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर बन जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम सैलरी, यहाँ पे और कौन कौन से एडिशनल बेनिफिट्स हैं दैट यू विल गेट इफ यू बिकम अ सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, विल मीट इन अनदर सेशन। टिल देन, गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग फ्रेंड्स।